Hello, and you're watching the News Bridge Connecting as it is. We, the team of New Bridge, would like to congratulate all the new licensed full-time workers and commissioned workers on achieving their remarkable milestone on their journey of faith and service. Today, the Arunachal Pradesh Christian Revival Church Council is all set to host a much-awaited conferring of license and ordination program on October 11, 2024 in Christian Revival Church, Gopur, Itanagar. The event theme was inspired by "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth." This is taken from the Bible, the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. This event was led by Reverend David Chetri, the pastor of Christian Revival Church Posa, as a service chairman, and Reverend Tinu Yangba Inchen, the missionaries of Northeastern India and Himalayan region, as the conferring ministers. Adding the spiritual atmosphere, the UPCRC Youth Wing congregation leads the congregations in praise and worship. This significant event promises to be a day for a deep spiritual importance for all the new licensed and ordained reverend and also for the Christian community. Receiving the license and stepping into the role of full-time ordained minister is a testimony to their dedication, perseverance, and unwavering commitment to the God's calling. May they be guided by the wisdom and grace as they serve with integrity and patience. We celebrate this significant achievement with them and look forward to seeing the incredible impact they will do for the community, blessing on the new chapter for their spiritual journey. So for more update, keep watching the News Bridge Connecting as it is. Church and our organization, we have this commission, license, and ordination, 3 stages of the recognizing. It depends on your dedication and your ministry. So this categorized, we have categorized that commission, those who committed themselves to do the ministry, and after a certain period of time, they will be licensed so that they will do some church ordinances with a license, authorized, and after that, they will be qualified to do this, to have this ordination, reverend ordination. So it depends on their character and how they contribute towards the church ministry. So it depends on that, we do that ordination program. Thank you. So after the question, licensing and reverend ordination. लाइसेंस जो ऑडिट जो है ज़रूरी है कि जो हमारे ईश्वर को नहीं जानने वाला लोगों को
आत्मा बचा के और उन लोगों को बपतिस्मा देना है, यही हम लोग का इम्पोर्टेंस है। उन लोगों को बपतिस्म देने के लिए, लॉर्ड सपर देने के लिए उन लोगों को हम लोग नियुक्त किया जाता है। सर, एज ए ऑर्गेनाइजर कमेटी ना, आज का जो प्रोग्राम है वो क्यों कंडक्ट किया है और क्या वो हर साल कंडक्ट होता है? ये आज का जो प्रोग्राम है हम लोग लाइसेंसिंग और ऑर्डिनेशन प्रोग्राम था आज का, और ये प्रोग्राम हर साल नहीं करता है, और ये को हिसाब में, ज़रूरी हिसाब में हम लोग देख के कभी 3 साल में एक बार करता है, और ज़रूरी होने से हर साल भी करता है। और ये जो है उसका हिसाब में, जो जगह का हिसाब में और आदमी का मैच्योरिटी हिसाब में, और जहाँ में स्पिरिचुअल का ग्रोथ के हिसाब में इसको आज का प्रोग्राम को किया जाता है। और सर, आप क्या इनलाइटन कर सकते हैं आज के प्रोग्राम में क्या क्या हुआ? तो आज का प्रोग्राम में हम लोग ऑल अरुणाचल से 9 रेवरेंस लोगों को ऑर्डेन किया, और 54 इवेंजलिस्ट लोगों को आज ऑर्डेन किया है। इसलिए आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। आज का जो लाइसेंसिंग प्रोग्राम और हम लोग का ऑर्डेन प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा हुआ परमेश्वर का द्वारा से, और सब स्टेट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब लोग आया था और उन लोग विटनेस किया, और हमारे अपसीआरसी जितना भी लीडर्स हैं सब लोग इसमें पार्टिसिपेट किया, और आज का प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ। थैंक यू। थैंक यू जो हमारा न्यू ब्रिज ने दिया, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका क्वेश्चन को मैं ये बोलना चाहेगा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन रजिस्टर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ में एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हमारा सिस्टम है और हमारा प्रैक्टिस है। ये लाइसेंस कमीशन लाइसेंस और ऑर्डेन होता है, रिवारेंट होता है। तो कमीशन जो हम लोग फर्स्ट स्टेज में जो ईश्वर का काम करने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, और आफ्टर 3 इयर्स का बाद जो कमीशन में क्वालिफाइड है या वो मिनिस्ट्री में फ्रूटफुल है, अच्छा कर सकता है, अच्छा ओबीडियंस है, तब जाकर हम लोग उसको हमारा ऑर्डिनेशन बोर्ड और अपसीआरसी बैठ के प्री मीटिंग करके उसको लाइसेंस में हम लोग दिया जाता है। और लाइसेंस में वो कैटेगरी आता है कि जो लाइसेंस जो जिस समय देगा उस समय को वो बपतिस्मा दे सकता है, लॉर्ड्स पर खिला सकता है, चर्च डेडिकेशन कर सकता है, और जो हाउस डेडिकेशन कर सकता है, चाइल्ड डेडिकेशन कर सकता है। जहाँ में ऑर्डिनरी रिवारेंट नहीं है तो वो जगह में आपका मैरिज सेरेमनी में भी वो कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्टर बन सकता है। और कमीशन का वही है कि कमीशन में जस्ट उसका गॉस्पेल सुनाना, उसका बाद चाइल्ड डेडिकेशन कर सकता है, हाउस डेडिकेशन कर सकता है, तो उसका जस्ट कुछ लिमिटेड ही एक हमारा सर्टेन जो एक लिमिटेड हम लोग का जो उसमें पावर दिया गया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में। और जो लाइसेंस का बाद आफ्टर ये अच्छा काम करने वाला को 10-15 इयर्स के बाद अच्छा काम करता है, उसको देखकर, उसका अच्छा काम को देखकर हम लोग फिर अपसीआरसी समय से मीटिंग बैठ कर डिस्कशन करता है ऑर्डिनेशन बोर्ड का साथ में। तो उसी में से बहुत सा हमारा यहाँ में 200, 300, 400 लोग हैं हमारा फुल टाइम वर्कर्स, लेकिन उसी में से कौन आदमी ऑर्डेन रिवारेंट लेने का योग्य है, उसका अपना पर्सनल टेस्टिमनी ब्लेमलेस या उसका हर चीज़ कैरेक्टर में जो अच्छा चीज़ को उसको हम लोग पिकअप करके उतार के फिर उसको हम लोग रिवारेंट में प्रमोट करता है। रिवारेंट इसलिए दिया जाता है कि रिवारेंट जो हमारा अपसीआरसी का तो पहले जो हम लोग ऑनर किया जाता है, जो उससे हमारा और ऑनर करने का जगह नहीं है, तो उसको हम लोग सेकंड जीसस का रूप में हम लोग ऑनर करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो रिवारेंट जो ऑल एंड ऑल जो जितना भी सेक्रेमेंटल वर्क को कर सकता है, तो और वो जो साथ साथ में जितना भी उसका नीचे का जितना फुल टाइम वर्कर्स जो लाइसेंस है, कमीशन है, उसको स्पिरिचुअल में भी गाइडेंस करता है। और कहीं कहीं हमारा डॉक्ट्रिनल में भी, अपसीआरसी का डॉक्ट्रिनल में भी प्रॉब्लम होने से वो लोग हम लोग को गाइड करता है। तो वो लोग कोई भी इशू होने से वो हम लोग को लेकर वो सही रास्ता में वो हम लोग को इनकरेज या सही दिशा में हम लोग को ले जाता है। यही हमारा फर्क है, और आज भी हम लोग इसको हम लोग कंटिन्यू साल में समय में हम लोग डिस्कशन करके हम लोग कंटिन्यू प्रोग्राम कंडक्ट करता है। थैंक यू। ये होने से कितना साल का बात होता है? ये जो आगे इसका जो साल होना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, इसको देखकर, समय को देखकर 3 साल का बाद भी दे सकता है, 1 साल का बाद भी दे सकता है, या 10 साल का बाद भी दे सकता है। जैसे समय को देखकर, सिचुएशन को देखकर, अगर आप बहुत सा का रिवार्ड देने का योग्य हो गया, ऑर्डिन देने का योग्य हो गया, तो हम लोग ऑर्डिन दे सकता है। तो इस बार हम लोग कमीशन नहीं दिया है, लाइसेंस और ऑर्डिन किया गया है।
तो कमीशन इसलिए नहीं दिया है कि हमारा कमीशन जो बाद में देगा, लेकिन अभी हम लोग के लिए कमीशन इतना जरूरी नहीं है, इसलिए लाइसेंस कमीशन वाला को लाइसेंस में प्रमोट किया। और लाइसेंस में से बहुत सौ लोग हैं, उसी बीच में से हम लोग 9 लोग को हम लोग फिर से ऑर्डिन में हम लोग प्रमोट किया। यही है, और उसको समय का हिसाब में, सिचुएशन का हिसाब में अपना अफसर देखकर उसको प्रोग्राम को बनाता है। थैंक यू। आज लेमैन से डायरेक्ट रेवरेंड होने का, ऑर्डिन होने का, इसका बारे में आप पूछ रहे तो हम कुछ बात बताने चाह रहा हूँ। मैं इसलिए आज ले लीडर से या अफसर प्रेसिडेंट होके भी आज मैं ऑर्डिन क्यों ले रहा है बोलने से, इसका एक कारण है। जब मैं 2009 से लेकर 2012 तक हम लगभग 4 साल जैसे प्रेसिडेंट रहा है, उस समय में मैंने देखा है। और आज 2022 से आज तक जो हमने दो टाइम जो है दो बार प्रेसिडेंट बना है FCRC में। फिर भी मेरा मिनिस्ट्री जर्नी में मैंने देखा है इतना हाई पोस्ट में रह के भी सक्रामेंटल का काम करने का नहीं मिलता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो कभी हाउस डेडिकेशन होता है, कभी चर्च डेडिकेशन होता है, कभी चाइल्ड डेडिकेशन होता है या होली मैरिज होता है। तो मैं बीइंग एक हाईएस्ट पोस्ट में रहते हुए भी एक फुल टाइम का पीछे हार जाता है। तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत समय से देखा है, आज में 23 ईयर से लगभग हो गया है मेरा मिनिस्ट्री में, मेरा किस्तान नीति में मैंने देखा है लीडर होते भी फुल टाइम होना जरूरी देखा है, क्योंकि सक्रामेंटल काम में पीछे हट जाता है। तो इसलिए मैंने ऐसे महसूस किया है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि FCRC को, काउंसिल को, बोर्ड को मैंने अपील किया है मैं एक प्रेसिडेंट होते हुए भी सक्रामेंटल काम करने चाहता हूँ। और मेरा अपना कॉलिंग को भी मैं खुद जानता हूँ कि परमेश्वर का कॉलिंग मेरा गॉस्पेल में है, टीचिंग पिचिंग में है, और ऐसे करके मेरा मिनिस्ट्री जो रहा है। इसलिए मैं चाहता था कि प्रेसिडेंट का साथ साथ में, और या प्रेसिडेंट होने का बाद में भी, प्रेसिडेंट टेन्योर खत्म होने के बाद में भी जो सक्रामेंटल काम करने का, प्रभु काम को काम करने का इच्छा था। इसलिए मैंने अपील किया और मेरा अपील को मेरा काउंसिल का लीडर लोग ने अप्रूव कर दिया, पास कर दिया और बोर्ड में भेज दिया है। और बोर्ड आज हमको फुल पेमेंट किया, हमको ग्रहण किया है। आज मैं ऑर्डिन हो गया। और ये ऑर्डिन जो है ये रेवरेंड होने का या फुल टाइम होने का मेरा कोई यहाँ में प्रोटेक्स के लिए या पैसा कमाने के लिए या पावर कमाने के लिए ऐसे कुछ नहीं है। मुझे सब कुछ ईश्वर ब्लेसिंग किया है, बहुत कुछ ब्लेसिंग किया है। ईश्वर ने मुझे बहुत मैंने हाई पोस्ट में भी अभी 2 बार टाइम दिया है, मौका दिया है। फिर भी जो है हमेशा के लिए, आने वाला समय में हमेशा के लिए परमेश्वर और लोगों का बीच में एक रास्ता बनाने के लिए, यानी कि एक मैंने लोगों को आत्मा, परमेश्वर जो ईश्वर को नहीं जानता या ईश्वर को जान के भी अच्छा से नहीं जानता है, उसको आत्मा को बचाने के लिए ईश्वर का बीच में हमको मार्ग के हिसाब में, रास्ता के हिसाब में हमको ईश्वर ने चुना है उस काम को करने के लिए, यानी कि ईश्वर तक जो है लोगों को पहुंचाने के लिए, बचाने के लिए ये मेरा जो काम है। और दूसरा काम कोई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ईश्वर का ही काम है। ईश्वर का काम को करने के लिए और ईश्वर तक जो लोगों को पहुंचाने के लिए, बचाने के लिए, ये मेरा मेन मकसद है। प्रेज़ लॉर्ड। ये तो मैं तो ये मैसेज दूंगा, पौल का बोला जैसा है, कोरिन्थियन में बोला जैसा है, ईश्वर काम करना है तो मरते दम तक काम करना है। ये मैं सजेशन देने चाहता हूँ। कभी कभी ईश्वर काम करके, ईश्वर काम करने वाला लोग जो है, खास करके फुल टाइम लोग और ले लीडर लोग, बहुत अंतर है। फुल टाइम जो है जब नहीं मरने तक ईश्वर काम करेगा। ले लीडर जो है थोड़ा सा बुरा होने के बाद या करने नहीं पाएगा तो करने नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात के लिए हम ये जिक्र करते हुए बुरा होने तक, नहीं मरने तक ईश्वर काम करने के लिए आज हम भी फुल टाइम लिया है।
इसलिए मेरा यही सजेशन है, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे मेरा फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, ऑल अरुणाचल में कोई भी कोना में मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूँ। हर कोई आदमी ईश्वर काम करने के लिए इच्छा होना चाहिए, ईश्वर काम करने के लिए कोशिश करना चाहिए, और वो ईश्वर काम करने के लिए भी ऐसे वाइट ड्रेस पहन के नहीं, रिवर बन के ऐसे नहीं, वो जो है पक्का ईश्वर तक जो है सही काम को करने के लिए, ईमानदारी सच्चाई को काम करने, परमेश्वर को विटनेस देने के लिए, और ऐसे काम सभी लोग काम आगे निकलना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। और जो लोग ईश्वर का काम कर रहा है फुल टाइम लोग, उन लोगों का मेरा अपील है कि हमारा काम है, मेरा बेहर बैर से, मेरा प्रेयर प्रार्थना से, मेरा विश्वास से, मेरा कैरेक्टर से, वो जो ईश्वर काम करने का तौर तरीका है वो लोग देख करके अच्छा लगे और चंगाई पाए, ब्लेसिंग पाए, और सही काम को करके लोगों को बचाने के लिए ईमानदारी का, सच्चाई के साथ, आत्मा का साथ काम करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है, मेरा संदेश है। और जो लोग ईश्वर का लीडर नहीं हुआ है और ईश्वर काम नहीं करता है, ईश्वर को विश्वास करता तो जरूर है, चर्च तो जाता है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए और ईश्वर का गहराई को, ईश्वर को सच्चाई को जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। यानी कि ईश्वर जो प्यार करता है, ईश्वर के प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए और ईश्वर के प्यार को लेके लोगों तक प्यार को पहुंचाना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। और इस प्रकार से यहाँ में अरुणाचल में कहीं भी जाता तो दिखता है तो जो सही काम करने वाला सही होता है, गलत काम करने वाला गलत ही एग्जाम्पल होगा। इसलिए मेरा अपना बिलीवर्स को, अपना आपसीआरसी को, फुल टाइम हो, लीडर हो, मैं आज आपसीआरसी प्रेसिडेंट होके भी बोल रहा है और आज ऑर्डिनरी लीडर होके भी बोल रहा है। मेरा सजेशन ये है कि जो लोग इस काम करता है सच्चाई से, ईमानदारी से, आत्मा से और ईश्वर की इच्छा में काम करके लोगों को जो बचाने के लिए, यानी कि लोगों को जोड़ने के लिए काम करना चाहिए, तोड़ने के लिए काम नहीं करना चाहिए, और एग्जाम्पल होना चाहिए खास करके लीडर लोगों को। ये मेरा संदेश है। प्रेज़ लॉर्ड।